जी, तो आपके सामने खुल गया है मेटल्स एंड अलॉयज। मेटल्स एंड अलॉयज का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो तो मेटल्स होती हैं जो कि जिनका एक डेफिनेट मतलब है कि जो आपको नेचुरली मिलती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं जो कि आप दो मुख्तलिफ मेटल्स वगैरह को और कुछ और चीज़ों को मिलाते हैं, उनसे आप अलॉयज बनाते हैं, जब ब्रास वगैरह। तो ये मुख्तलिफ मेटल्स और अलॉयज जो हैं ये भी मुख्तलिफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में और मुख्तलिफ और इस तरह के कामों के अंदर इस्तेमाल होती हैं। मतलब कि मैकेनिकल काम्स के जो मैकेनिकल वर्क्स देयर these type of metals and alloys are used. Similarly, in civil engineering, some pipes which are made of the metals and some आपने देखा होगा कि जो टूटी हैं, these taps of the water, they are used of some alloys. So metals are class of elements exist as oxide, carbonate, sulfide and phosphate compounds in natural rocks called ores. So these are the elements, they exist as oxide, carbonate, sulfide and phosphate compounds in natural rocks called ores or metals. Some metals are found like this. Ferrous metals are those metals in which iron is the main constituent. And non-ferrous metals are those metals in which iron is not the main constituent. Aluminium, copper, zinc, lead, tin, etc. They are called the non-ferrous metals. So, non-ferrous metals, aluminium, copper, zinc, tin, lead, etc. And ferrous metals are pig iron, cast iron, wrought iron, steel. These are called the ferrous metals. And non-ferrous alloys are brass, bronze, duralumin, German silver. So these are products which are made by joining different type of metals, and some other things are called the non-ferrous alloys. Iron, as you all people know, is available in abundance on the earth. इसमें मतलब है हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि दुनिया के अंदर पहले आयरन नहीं था, तो अल्लाह ताला ने कोई शाबे साकब कोई इस तरह का सैयारचा भेजा जो कि इस दुनिया के साथ टकराया, उसके बाद इसके अंदर लोहा जो है वो पहले नहीं था। तो अल्लाह ताला को तो पता था कि लोहा काम की चीज़ है, तो वो जो आयरन दैट वाज पुट इनसाइड दिस अर्थ सो दैट द ह्यूमंस कैन यूज इट. So iron is available in abundance, but it does not occur freely in nature. It is मतलब it is found in various type of ores. इसकी कई कानें होती हैं जिनमें ये मौजूद होता है. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट, Fe2O4, Fe3O4. So that is in the magnetite, how much percentage of the iron can be found? 70 to 75%. Hematite, Fe2O3, 70% approximately iron is available in that. Limonite, 60%. 2Fe2O3.3H2O. देन आयरन पायराइट, आपको पता है आयरन पायराइट के बारे में हमने पढ़ा भी पहले एक दफ़ा. इट इज फेरिक सल्फेट, 47% आयरन. एंड सिडेराइट, FeCO3, so in which the 40% iron is available. तो ये आपका जो चीज़ें हैं, आयरन कैन कंबाइन, ज़रा पढ़ें आप, with other elements and its properties is markedly altered and improved for weighing conditions of service. आगे फिर हम जाते हैं फ्रैक्चर, ब्रिटल एंड डक्टाइल बिहेवियर ऑफ these metals. फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर इज द सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट इनटू 2 or more pieces
under the action of a static or slowly changing imposed load at temperatures that are low compared with the melting temperature of the material. अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट से कम पर आप टेम्परेचर पर उसको खींचते हैं दोनों तरफ से, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो टू और मोर पीसेस में अंडर द एक्शन ऑफ अ स्टैटिक और स्लोली चेंजिंग इम्पोज्ड लोड में, तो वो उस चीज़ को फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपने पहले पता ये आयरन पायराइट जो आपको बताया था, तो आपको पता होगा फूल्स गोल्ड भी इसको कहते हैं, यानी इसकी जो शक्ल होती है आयरन पायराइट की, ये गोल्ड की तरह की होती है, तो लोग इसे समझते हैं। खैर, अभी फ्रैक्चर पर हम पहुंचे आगे। ब्रिटल फ्रैक्चर, डिटेल फ्रैक्चर, ये दो तरह के फ्रैक्चर हैं। ब्रिटल फ्रैक्चर अकर्स व्हेन द मटेरियल अब्सॉर्ब्स लिटिल और नो एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। एकदम कड़ाके से टूट गया, ब्रिटल बिल्कुल, यानी that showed no elasticity, nothing like that, not any plastic type of behavior or something. It's called brittle fracture. Or ductile fracture requires a material that can experience appreciable plastic, that is irreversible deformation and energy absorption before fracture. तो इसमें डिटेल फ्रैक्चर क्या होता है कि इसके अंदर जो मटेरियल है उसके ऊपर जब वजन पड़ता है या उसको आप खींचते हैं, तो उसके अंदर वो फ्रैक्चर जो होता है उसका, वो ज़रा अप्रिशिएबल प्लास्टिक होता है, यानी वो थोड़ा एलोंगेट होकर उसके अंदर डिफॉर्मेशन होती है थोड़ी सी, और एनर्जी वो अब्जॉर्ब करता है पहले थोड़ी देर, उसके बाद यानी उसे विद स्टैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं कर सकता, तो फिर उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन डिक्टाइल तो जिसके अंदर इसमें जो है, अगर आप कोई बार वगैरह को अगर आप कर रहे होंगे, तो उसमें अगर डिक्टाइल फ्रैक्चर होगा तो उसमें उसकी लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है ड्यू टू दैट, और वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिस जगह पे मैक्सिमम, वो जिस जगह पर वीक हो या जो मीडियम मिड पॉइंट है, जिस जगह पर ज़्यादा वो फोर्स एक्ट कर रही है, तो उस जगह के ऊपर वो डक्टाइल बिहेवियर आपको देता है, द फ्रैक्चर हो जाता है। द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एंड इज टर्म्ड द टफनेस ऑफ द मटेरियल। ये देख लें आप, अब ये ब्रिटल है, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया ब्रिटल, इसमें कोई उसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, उसमें कोई ज़्यादा इतनी अप्रिशिएबल लेंथ में इंक्रीज नहीं आई। जबकि जो डक्टाइल था, ये डक्टाइल वाला जा रहा है आपके सामने, तो उसके अंदर देखिए कितनी उसमें स्ट्रेन जो था, स्ट्रेस जो जो आप बढ़ाते गए तो एक ख़ास हद तक तो वो लीनियरली गया, उसके बाद आपने स्ट्रेस नहीं दिया उसे बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रेन है यानी वो उसमें लेंथ जो है वो बढ़ गई, और जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेन ज़्यादा हुआ, फिर आखिर बिल आखिर वो फ्रैक्चर हो गया। तो ये जो है ये डक्टाइल किस्म का आपके पास, ये पहले तो स्ट्रेस स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेस जो है ये एक जगह है, यहाँ तक तो ये सीधा गया, उसके बाद फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा विदाउट अप्रिशिएबल इंक्रीज इन द स्ट्रेस उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई। बिफोर लोडिंग ये ब्रिटल फ्रैक्चर में तो एकदम टूट गया, क्योंकि डिटेल के अंदर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी इफेक्ट हुआ और वो टूट भी गया, तो उसमें नेक सी बन गई, नेक आफ्टर मैक्सिमम लोड। यही आपके सामने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में वो बता रहा है। आप जरा ये तस्वीर
जी, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपके सामने मौजूद है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जिस पर लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए कि इलास्टिक लिखा है। इलास्टिक का मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और आप यहाँ तक लेकर गए और अगर आप छोड़ेंगे तो ये हो सकता है कि इसी तरह वापस आ जाए। और इसमें मतलब है कि जो स्ट्रेन इंड्यूस हुआ है वो रिकवरेबल स्ट्रेन है। तो ये ही जो जिस जगह तक तो रिकवरेबल स्ट्रेन हो, मतलब कि वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, तो उसको आप यील्ड पॉइंट कहते हैं कि जिसके बियॉन्ड जो है उसमें स्ट्रेन जो है वो परमानेंट हो जाए। तो ये यील्ड पॉइंट जो है, ये मिसाल तो ए है, जिस जगह के ऊपर अगर आप यहाँ तक इसको स्ट्रेस जो है वो देंगे, नीचे से ऊपर तक स्ट्रेस देंगे, तो उसमें जो स्ट्रेन है वो उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा। और स्ट्रेन जब इंड्यूस होगा इसके अंदर, तो ये जो है, ये अगर आप इसके बाद उसको आप स्ट्रेस ख़त्म करेंगे, रिलीज करेंगे, तो वापस अपनी जगह पर आएगा। तो यील्ड पॉइंट, स्ट्रेस स्ट्रेन, यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट, ये तीन चीज़ें हैं जो कि आपको, इलास्टिक लिमिट जो है वो ये वाला पॉइंट है कि जिस जगह जो मैक्सिमम आपके जहाँ तक वो स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो लीनियर है। उसके बाद आप देखें कि लीनियर नहीं रहता, वो चेंज हो गया। तो चेंज हुआ तो उसके अंदर जो स्ट्रेन है वो लीनियरली, स्ट्रेन जो है वो नहीं बढ़ रहा स्ट्रेस के साथ, बल्कि इसका जो चेंज हो गया पैटर्न। और उसके बाद ये बी पॉइंट तक अगर आप देखें, तो अगर आप बी पॉइंट पर लेकर गए या उससे पहले गए, तो उसमें अगर आप रिलीज करेंगे तो उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। फिर आप दोबारा इसको लोड करेंगे तो वो फिर यहाँ जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, वो कोई सी या जो पॉइंट लिखा है इस जगह से फिर वो दोबारा स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुकी होगी। अच्छा, जब ये आप बी को क्रॉस कर लेते हैं ख़ास जगह से, तो ओ ए तक ये देखें उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, ओ ए में कोई चेंज नहीं हुआ उसकी लेंथ में, क्रॉस सेक्शन एरिया में। ये उसके निचली वाली फिगर देखें तो ए से ई तक अगर आप देखें तो उसमें ये एक परमानेंट स्ट्रेन आ गया। ई इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो जगह है कि जिस जगह के बियॉन्ड अगर आप उसके अंदर स्ट्रेस देंगे, तो वो स्ट्रेस जो है वो उसकी वजह से उसमें स्ट्रेन नहीं होगा, बल्कि वो फ्रैक्चर की तरफ चला जाएगा और वो फ्रैक्चर हो जाएगा। एफ फ्रैक्चर है कि वो फ्रैक्चर उस जगह पर हो जाएगा, और दैट विल बी दी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ई पर होगी। उसके बाद फिर जो है उसकी जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन जो है वो बढ़ता जाएगा और स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता जाएगा, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम होता जाएगा, तो वो फिर ये फ्रैक्चर हो जाएगा। अब कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल, आप किस तरह रॉ मटेरियल लेते हैं और उससे किस तरह से आप उसको मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर बनाते हैं। तो आयरन और अगर आपने ली, या तो उसके साथ आपने उसमें कोक और एक चीज़ है लाइमस्टोन, उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद आपने उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया। ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद उसके अंदर जो है उसका प्रोसेस हुआ, तो उसके ब्लास्ट फर्नेस में दो चीज़ें हो गई। एक नीचे से जो गंद है वो निकल गया, जिसको कहते हैं स्लैग। स्लैग जो है वो कचरा, कचरे को आप कह सकते हैं स्लैग। और जो पिग आयरन है, ब्लास्ट फर्नेस से आपको दूसरी चीज़ मिली पिग आयरन। अब पिग आयरन से आप दो काम कर सकते हैं कि ये जो आयरन है पिग आयरन, ये आपके पास सीधा सीधा वो आयरन है जो कि आप किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कास्ट कर सकते हैं, वो देगी पाइप जिन्हें कहते हैं, या पिग आयरन पाइप्स होते हैं, यू कैन मेड देम, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर लिटिल बिट ब्रिटल। तो पिग आयरन जो है उसको फिर अगर आप तो उससे कास्टिंग कर लें तो आप उससे चीज़ें बना सकते हैं, अदरवाइज आप उसे फर्नेस में डाल देते हैं। एक ओपन हार्थ फर्नेस होती है, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस है, ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है। अब ये तीनों के अंदर उनको पिघलाया जाता है पिग आयरन के उनको, और उसके बाद आप उसको कास्ट आयरन टू रॉट आयरन टू स्टील, आप इसमें अलोइंग एजेंट डालते हैं, मतलब कार्बन डालते हैं और इस तरह की चीज़ें, क्रोमियम डालते हैं, जो भी आपके चीज़ें मुख्तलिफ मुख्तलिफ उसमें मेटल्स वगैरह हैं, वो कुछ और इस तरह की ऐड करते हैं आप, या कार्बन में ऐड करते हैं, जिससे उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो उसके बाद आप
उसके बाद आप या तो उसे आप कास्ट करने लग पड़ते हैं उससे चीज़ें, जब आपके या स्टील बन गया तो स्टील से आप या तो सीधा उसके जाकर तो उससे बार्स बना लेंगे कुछ और, या फिर आप उससे ब्लॉक्स बनाएंगे। वो जो ब्लॉक्स हैं वो आप बनाने के बाद स्टैक कर लेते हैं, और जिसको भी ब्लॉक किसी और इंडस्ट्री को चाहिए तो उसको आप बेच देते हैं। मतलब है कि आपके पास इतनी डिमांड ही नहीं है चीज़ें बनाने की स्टील की, या रीइंफोर्समेंट बार्स की होगी, तो आप उसको फिर ब्लॉक्स वगैरह में करके तो उन्हें आप स्टोर कर लेते हैं। वो ब्लॉक्स का क्या साइज़ है, उनको आप इंगॉट्स कहते हैं। अब इंगॉट्स हैं, फिर इसके अलावा आप इसको सोकिंग पिट्स, मतलब पिट्स वगैरह में डालते हैं, प्राइमरी रोलिंग आप उसकी करके रख छोड़ते हैं। तो सब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं आपके पास, आप उससे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। बनाने के बाद आप उनसे स्ट्रक्चरल शेप्स, रेल्स, बार्स, वायर्स, पाइप्स, प्लेट्स, शीट्स, ये चीज़ें फिर इनसे आप कंटिन्यूस कास्टिंग से आप, या प्राइमरी रोलिंग वगैरह जो भी है उससे आपको जो भी है वो आप ये चीज़ें बनाते जाते हैं। जो चीज़ें आप, अगर आपके साथ इतनी ज़्यादा चाल नहीं है, यानी यू डोंट हैव a lot of things to be made, you don't have any orders, then you can make simply ingots and you can store them. In steel, the carbon content is chemically combined, is in chemically combined form and may exist up to 1.5%. तो कार्बन कंटेंट आप उसमें स्टील में डालते हैं तो 1.5% तक हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। For a material to be classified as steel, there should be no free graphite in its composition. Any free carbon makes it as cast iron. तो स्टील की कैटेगरीज हैं, डेड माइल्ड स्टील है, इसमें 0.15% से कम कार्बन होता है। माइल्ड सॉफ्ट या लो कार्बन स्टील होता है, 1.15 से 0.3% कार्बन तक होता है। फिर मीडियम कार्बन स्टील है जिसमें 0.3 से 0.8% कार्बन होता है, और हाई कार्बन स्टील है जिसमें 0.8 से 1.5% कार्बन होता है। तो ये मुख्तलिफ इसके अंदर आप जो है वो परसेंटेज के हिसाब से आप उसे कहते हैं कि माइल्ड, सॉफ्ट, लो कार्बन स्टील है, या मीडियम कार्बन स्टील है, या हाई कार्बन स्टील है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप उसमें कार्बन कितना डाल रहे हैं। अब स्टील से आप कार्बन स्टील भी बना लेते हैं, जो माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई टेंशन स्टील, रीइंफोर्सिंग स्टील है, ये प्रोडक्ट्स हैं ना उसके। और उसके अलॉय जो स्टील्स हैं उनमें स्टेनलेस स्टील, निकल स्टील, वेनेडियम स्टील, टंगस्टन स्टील और मैंगनीज स्टील है। अब ये मैंगनीज जब डालेंगे उससे, जब वो कार्बन तो डला होगा स्टील में, उसके बाद आप मैंगनीज डालेंगे तो मैंगनीज स्टील बनेगा, टंगस्टन डालेंगे टंगस्टन स्टील बनेगा, वेनेडियम और ये चीज़ों से बनेगा। निकल डालेंगे थोड़ा सा तो आप निकल स्टील बन जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन डलता है। हाई टेंशन स्टील जो है वो है कि लो कार्बन स्टील विद कार्बन नियरली 0.15%, extensively used in reinforcing pre-stressed concrete light structures, cables, steel, ropes, etc. तो अब reinforcing pre-stressed concrete जो है उसके अंदर जो उसके लाइट स्ट्रक्चर्स आपने बनाने हैं, फिर केबल्स आपने हैं वो जो उनमें आप इस्तेमाल करते हैं स्टील, रोप एक्स्ट्रा में। तो हाई टेंशन स्टील का ये है कि ये इट कैन टेक लॉट ऑफ फोर्स ऑन लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। माइल्ड स्टील है कि स्टील विद कार्बन कंटेंट 0.15 टू 0.3%, जिससे पहले भी बताया है, कॉल्ड माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील और सॉफ्ट स्टील यूजेस। 1 मिनट में अगर एक कॉल आ रही है तो मैं वो सुनता हूँ, आप जरा इसे पढ़ें।
तो इस तरह ये आप इससे क्या कर सकते हैं, माइल्ड स्टील से आप इससे प्लेन और कोरुगेटेड शीट्स बनाते हैं। जो आपकी कोरुगेटेड शीट्स होती हैं ना, जो आप कई बार छतों पे डालते हैं या आप उसे इस तरह की और जगहों पे डालते हैं, तो उनको भी आप माइल्ड स्टील जो है उससे आप बनती है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन पार्ट्स वगैरह। अब ये रोड सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल्स, एंगल आयरन, ये मुख्तलिफ आपके सामने उनकी तस्वीर है। ये ए बी सी, ये मुख्तलिफ डी ई एफ, ये मुख्तलिफ किस्म के इनकी शक्लें हैं। मतलब ये आई सेक्शन है, सी सेक्शन है, टी सेक्शन है, फिर ये एल सेक्शन इसको कहते हैं। फिर इसके अलावा ये सर्कुलर ई जो है, ये आपके सर्कुलर पाइप्स वगैरह हैं। और ये आपका इस स्क्वेयर सेक्शंस हैं। इस तरह की चीज़ें आपकी मुख्तलिफ जो हैं वो रोलिंग से और उन प्रोसेस से बनती हैं। हाई कार्बन स्टील जो है, स्टील वेयर द कार्बन कंटेंट इज फ्रॉम 0.55% टू 1.5%। इसके यूजेस किधर हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ टूल्स लाइक ड्रिल्स, फाइल्स, chisels, fine quality of cutlery, parts of machines requiring to withstand shocks and vibrations, उधर ये हाई कार्बन स्टील आप इस्तेमाल करते हैं। ड्रिल्स वगैरह जो है उनके अंदर जो ड्रिल्स की बिट्स होती हैं उनमें आप यूज़ करते हैं, तो उन जगहों पर आप यूज़ करते हैं। इस तरह छेनी है थोड़े उनको। रीइंफोर्सिंग स्टील, रीइंफोर्सिंग स्टील वो स्टील है जो कि आप कंक्रीट के अंदर डालते हैं और उसको आप यूज़ करते हैं छतों वगैरह में। माइल्ड स्टील और डेड माइल्ड हाई टेंशन स्टील इज एम्बेडेड as reinforcement in plain cement concrete to provide tensile strength. Flat, square and round bars are used. Welded wire mesh also used as reinforcement. आजकल welded wire mesh भी यूज हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कहीं इंसुलेशन करनी है तो उस जगह पर भी लोग इसको यूज करते हैं। इसके अलावा किसी दीवार में अगर क्रैक आ गया है तो उस जगह पर भी ये वेल्डेड वायर मैश जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये रिइंफोर्समेंट आपके लिए आपके रिब्ड जो है वो स्टील है। आगे अलॉय स्टील जो है, इसके अंदर स्टेनलेस स्टील है, निकल स्टील है, वनेडियम स्टील है, टंगस्टन स्टील है और मैंगनीज स्टील है। अच्छा, आगे प्रिजर्वेशन ऑफ स्टील, रस्टिंग, कोरोजन। अब ये रस्टिंग के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ iron at the surface which is activated by presence of moisture and carbon dioxide and accelerated by atmospheric pollution is called rusting. So iron जो है वो नॉर्मली फेरस बाइकार्बोनेट, फेरिक बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाता है और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में। corrosion is basically the phenomena of slow but steady eating away of metal due to rust formation. तो जो ये rust इसमें होता जाता है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो कोई हवा, कोई और चीज़ें, रेत वगैरह लगी तो वो रस्ट उतरती जाती है उसको, या उसमें वो ऊपर वाला जो उसका ऑक्सीडाइज्ड पार्ट होता है वो उतरता जाता है, जिसकी वजह से वो जो है उसमें corrosion हो जाता है। आगे टारिंग, प्रिजर्व आप कैसे करेंगे उसे स्टील को। रस्टिंग और corrosion जो है ना, इससे इसको बचाना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है स्टील को। अब इसको करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप कोई रेड ऑक्साइड पेंट या कोई इस तरह का और पेंट जो है वो इसके ऊपर लगा लेते हैं स्टील के ऊपर, जिससे उसको बचत हो जाती है। प्रिजर्वेशन, टारिंग और पेंटिंग और एनेमलिंग और गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेसेस हैं, इसमें जो आयरन है इसको हॉट कोल टार में जो है वो डाला जाता है और उसके बाद टू फॉर्म अ फिल्म ऑन मेटल पाइप्स और पोल एंड्स। तो नॉर्मली जिन चीज़ों को आपने एम्बेड करना होता है ना ज़मीन में, उस पर करते हैं। आपने देखा होगा कि पाइप्स वगैरह के ऊपर वो कपड़ा सा
लगाते हैं और साथ ही बिचुमन वगैरह लगा देते हैं, तो उससे उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, जैसे एक इंसुलेशन सी हो जाती है उसकी, और वो फिर आप ज़मीन में जब डालते हैं तो उससे उसमें रस्ट वगैरह नहीं लगता और वो ख़राब नहीं होती। तो इस तरह अगर उसने 5 साल या 10 साल चलना है तो उसकी जगह पर वो जो जस्ती पाइप होता है कास्ट आयरन का, तो वो जो है दैट लास्ट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, मतलब 20 साल 25 साल 30 साल उसको वो आराम से गुजार जाता है। पेंटिंग भी आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लेड पेंट्स ऑन एक्सपोज्ड, समय को रेड ऑक्साइड पेंट का है, तो वो जो है वो उसके ऊपर कर दिया जाता है। रूफ ट्रसेस, ब्रिजेस, स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा पर लेड पेंट्स भी की जाते हैं, और उसके अलावा रेड ऑक्साइड इस तरह के जो होते हैं वो भी हम कर देते हैं। एनेमलिंग जो है, एनेमल आपको पता है, पहले आपको पढ़ाया भी है, तो उनको एनेमल से स्मॉल सरफेसेस जो है उनको आप एनेमल से भी ट्रीट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गैल्वेनाइजिंग टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और उसमें आप वो जब डालते हैं तो वो जिंक जो होता है या आयरन, वो उसके ऊपर उसकी सरफेस जो होती है उसकी फिल्म जो है वो ऑलरेडी जो आपका मेटल है उसके ऊपर वो लग जाती है। तो नॉर्मली जिंक जो है उससे गैल्वेनाइजेशन की जाती है, वो एक वो कैथोड बनाते हैं, एक एनोड बना देते हैं, तो उस तरह वो जो है उसमें जो टैंक्स होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सारे इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं आपके। नॉर्मली जीआई शीट्स जो हैं उनके ऊपर गैल्वेनाइजेशन की जाती है। टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग भी की जाती है कि डिपिंग इन बाथ ऑफ मोल्टन टिन, वो मोल्टन टिन का एक बाथ होता है उसके अंदर आप डालते हैं और निकाल लेते हैं। तो टिन आपने देखा होगा कि बाज़ार में कई दफ़ा आपको ये जो टिन्स होते हैं उनके अंदर फूड वगैरह मिल जाता है, जिस तरह जो मटर है, मटर हो गया या उबले हुए चने हो गए या भिंडी है, ये इनको जो जो जिन कंट्रीज़ में काफ़ी प्रोड्यूस होती हैं ये चीज़ें, तो ये इन कई इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आप ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप भिंडी को ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, फ्रीज भी नहीं उस तरह कर सकते। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको वो उबाल के तो एक टिन टिन वाले कोटेड डब्बों के अंदर डाल के तो प्रिजर्व कर दिया जाता है, उसमें केमिकल वगैरह डाल के, तो उससे आपको वो भिंडी जो है वो मिल जाती है। और इस तरह कई और चीज़ें हैं, पाइनएप्पल के टिन्स होते हैं आपने देखा है, तो जितने भी वो टिन है वो प्लेटेड होते हैं टिन से, इनसाइड उसके अंदर बेसिकली आयरन होता है और इर्द गिर्द उसके टिन प्लेटिंग होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिपॉजिटिंग थिन मेटल ऑफ निकल, क्रोमियम, कैडमियम, कॉपर और जिंक बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसेस। मेटल सरफेस इज कैथोड एंड डिपोजिशन मेथड इज एनोड। तो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये होती है, गैल्वेनाइजिंग में जो है वो उसके अंदर जो है वो नॉर्मली एक बाथ में डाल के निकाल लिया जाता है, तो उसके ऊपर उस तरह से कोटिंग हो जाती है। इसके अंदर इलेक्ट्रो प्लेटिंग के अंदर बेसिकली जो है वो एनोड और कैथोड का प्रोसेस किया जाता है। आपका आज जो है कि हमने स्टील के बारे में पढ़ लिया, तो स्टील के बारे में कोई एक न्यूमेरिकल वगैरह जो होगा वो फिर हम आपको जो दूसरी कोर बुक है उसके अंदर से एक न्यूमेरिकल भी आपको बता देंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में कोई न्यूमेरिकल अगर फिजिकल एग्ज़ाम होता है या जो भी है तो उसके लिए फिर हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज आपका ये जो है ये वाला भी आपका जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। तो ये वाले जो आपके ये जो था ये सारे का सारा आपका वो जो था वो कंप्लीट हुआ। तो हम जो सीआर's हैं वो किधर हैं इस वक्त, वो सारी क्लास की जो है वो हाज़िरी ले लें ताकि मेरे पास हाज़िरी आ जाए, क्योंकि पहले तो लड़के कुछ ज़्यादा हो गए थे, 65 तक थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 55 तक पहुंच गए हैं। हो सकता है किसी की बिजली चली गई हो, कुछ हो, तो उम्मीद है कि सीआर साहब को जब मैंने कहा था तो उन्होंने ले ली होगी पहले हाज़िरी। जी हाज़िरी ले ली है। यस सर, ले लिए मैंने।